Now next one is the function of the one random variable. So this is the function which we have already represent, like y is equal to g of x. So g, it is represented by function. How we can represent? Suppose x is an input variable, some one of the transformation is there, one of the function is there, suppose the g function is there, and you will get the output y. Okay, this is your output and this is your input. So we can say y is equal to g of x. What do you mean that? Suppose x, suppose there is one domain is that here there are number of the x1 x2 variables are there in the x domain. I want to map this x variable into the y domain. Okay, so suppose x1 is mapped to the y1 in another domain, that is the domain y, that is the domain x. X2 is mapped to the another variable y2, x3 is mapped to the another variable y3, like that. Otherwise x1 x2 x3 up to xn all are mapped to the only single variable y. Is it all? This thing is also possible. Okay, so there are the different types, but just consider right now, suppose any numbers of the x1 x2 x3 variables in the x domain, I want to map into the another domain y. So I am using here, that is one function, that is g. So how we can represent? So y of g of x1, sorry, y is equal to g of x1, so it is represented by y1, y2 is equal to g of x2, y3 is equal to g of x3, like that. Okay, so this is the mapping of x domain to y domain. Clear? So this is called the function of the random variable. Now y is equal to g of x, it should be satisfied some condition. So what is the first condition? यार इतना लेट कौन ज्वाइन हो रहा है? स्टूडेंट्स प्लीज टाइम पे ज्वाइन हुआ करो. इट्स ऑलरेडी 11:48 एंड आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर इज 11:45 नॉट 40. सो मैं 5 मिनट्स आपको देती हूँ मार्जिन. आप बीच में ज्वाइन होते हो, मेरा ये स्क्रीन शेयर है तो मुझे मोबाइल से सबको एडमिट इंडिविजुअली करना पड़ रहा है, तो वो बहुत डिस्टर्ब करता है. अभी भी है कोई? मिस आज ट्यूटोरियल है ना? नहीं, ट्यूटोरियल नहीं है. आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया. ओके मैम. आज मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मेन वेरिएंस जो प्रीवियस लेक्चर में हुआ उसके बेस पे ट्यूटोरियल ऑलरेडी हो चुका है. फाइन, तो वो एक टॉपिक के लिए सिर्फ फंक्शन ऑफ द मीन और फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जो है उसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड किया था हमने सिर्फ लास्ट 2 लेक्चर में. तो उसके बेस पे नया ट्यूटोरियल करने की जरूरत नहीं है. वी विल डू द ट्यूटोरियल ऑन द ट्यूसडे. ओके, तो थोड़े और 1-2 टॉपिक हो जाएगा. यस मैम. तो अभी भी कोई ज्वाइन हुआ? साद खान, रोल नंबर 7, डिवीजन बी. यस मिस. कितने बजे तो ज्वाइन हो रहा है? लेक्चर का टाइम क्या था? नेक्स्ट टाइम से मैं अलाउ नहीं करूंगी. सॉरी मिस. Okay, so y is equal to gx, that should be satisfied some condition. What is the first condition? Y का जो range है is definitely it should be in the range of x. Okay, जो x का range होगा वही range में आपको y मिलना चाहिए. Second condition, it should be monotonic function. Do you know what is the meaning of monotonic? नो मैम. Okay, monotonic function means it may be, if suppose any function is start to increase, so its continuous should be increase. If start to decrease, then it continuous should be decrease. It's called the monotonic function. Okay, so why it should be the monotonic function. And the third point, the probability of y at the y is equal to gx at the point of minus infinity and plus infinity. So probability of that of at the point of minus infinity and plus infinity, it should be 0. So there are the 3 main condition. Which one is satisfied by the y is equal to gx? First one, whatever the range of the x is given, y should be in range of x only. Second one,
y should be monotonic function. Monotonic that means it start to increase, then it's continuous to increase. इस ऐसे बीच में डाउन होके वापस वो increase नहीं होगा, like that. If start to decrease, then it's continuous to decrease. Okay, and the third one is probability of the y is equal to g of x at the point of minus infinity and plus infinity. It should be 0. It should be 0. Okay, so y has to satisfy these three conditions. Now there are the different types of the function. First one, suppose x and y both should be both are suppose discrete. Okay, both are suppose discrete. Second one is x is continuous and y is discrete. Third part is x and y both are continuous. Okay, so like that there are the total 5 different types of the function of the one random variable. First type, so write down here first one. किसी को ये कुछ लिखना नहीं है ना, मैं नोट्स शेयर कर लूंगी इस पूरा थियरी का जो भी है. यहाँ तक समझ में आ गया? Any doubt? No, ma'am. Okay. So now the first type, x and y both are discrete. Okay. So suppose x type number 1, x and y both are discrete. So x is discrete, so it takes the values upon x1, x2, x3 like that up to xn, and probability of that it is represented by p1, p2 up to pn respectively. Correct? So now y is equal to g of x. So if x is discrete, तो मैंने यहाँ पे आपको पहले फिगर भी बताया कि x1 which one is mapped to the y1, x2 it is mapped to the y2. So the x and y both are the discrete, that means individual variable of the x domain which one is mapped to the individual variable of the y domain. Okay, x1 is mapped to the y1, x2 is mapped to the y2 like that. So definitely we can write down like that, y is equal to g of x1, y2 is equal to g of x2. Fine. So g of x1, x1 is probability is p1, x2 probability is p2. So definitely for the y takes the value, suppose y1, y2, yn. तो उसका भी probability क्या होगा? p1, p2, p3 like that. Fine. So when the x and y both are the discrete, x takes the value like x1, x2 up to xn, and its probability is represented by p1, p2, and pn. So y takes the value is y1, y2, yn, and its probability is represented by p1, p2, pn. So we can write down in the common formula p of y is equal to yi, that is equal to pi. Okay, where I is equal to, we can say it is 1, 2, 3, and pi that is represented by, what is pi? Pi क्या होगा उसका? Definitely p of x equal to xi. x equal to xi. Suppose p of x1 x equal to x1 है, तो उसका probability suppose p1 है, तो definitely वही same probability आपको y equal to y1 पे मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे ऊपर represent किया. So common formula we can represent like that. P of y is equal to y, that is equal to pi, and pi is what? At the I equal to 0, तो x0 का probability suppose p0 है, तो p of y0 का probability वही p0 होगा. x1 का p1 है, तो y1 का p1 होगा, like that. Okay, but sometimes suppose x takes the value x1, x2 up to xn, and उसका सबका probability common है. Okay, that is p. x1, x2, x3, all the probabilities are represented by the same probability, like p, not p1, p2, p3 like that. तो उसी टाइम पे y का probability क्या होगा? So at that time, when you have to find out the probability of y is equal to y, so what we have to do? We have to take the addition of the probability at the x1 point, x2 point, x3 point like that. So we can write down that is equal to p of x equal to x1 plus p of x equal to x2 plus p of x equal to x3 like that. So if the probability same when you have to find out the probability of y,
we have to take the addition of the all the probabilities at the points of x1, x2 up to xn. Clear? Type 1 is clear. This is for the discrete. If x and y both are the discrete, then we have to use this formula for the in example. Okay. Yes, ma'am. So the example based on that. इफ आपको लिखना पड़ेगा, मैंने उसका पीपीटी नहीं बनाया है, तो राइट डाउन द एग्जांपल. मैं बोल रही हूँ एग्जांपल. इफ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, if x is discrete random variable taking values 0, 1, 2, 3, 4 with probability 0.20, 0.30, 0.25, 0.15 and 0.10 and 0.10, find probability density function, find probability density function, that means PDF, of y is equal to 2x square plus 3. Okay, so how we can find out? We know the formula y is equal to 2x plus 3. Okay, so what we have to do? First, we have to substitute the value of x and find out the value of y for that. So suppose I am taking x is equal to 0. So what is the value of y? Y क्या मिलेगा आपको? 3. Is 3. When taking 1, y it should be 5. It will be 5. When you are substituting the x is equal to 2, तो y मिलेगा आपको 2, 4, 11. When you substitute the value x equal to 3 in this formula, so you will get the y is equal to 3, 21. When you are taking the value 4, you will get the y is equal to 35. ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया? मैपिंग किया. x का वैल्यू आपको पता था 0, 1, 2, 3, 4 है, तो वही सेम वैल्यू आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 1. Okay, so we have to take the values of x here. It is you will get the सब different value of y. तो मुझे यहाँ पे y का वैल्यू अभी मिल. ना आपको यहाँ पे लास्ट में y का टेबल बनाना है. सो y इज इक्वल टू क्या क्या वैल्यूज मिला आपको y का? 3, 5, 11. At that time, what is the probability of that? Y is equal to yi. तो suppose y is equal to 3. y is equal to 3 के लिए उसका probability क्या होगा? आपको y3 कब मिला? When the x is equal to 0. Okay, तो x equal to 0 के लिए आपको probability क्या दी है क्वेश्चन में? It is 0.20. तो आपको यहाँ पे सेम probability रहेगा. मैंने आगे थियरी में आपको एक्सप्लेन किया कि x1 का probability p1 है, तो p of y1 आपका सेम p1 ही होगा. क्लियर? तो यहाँ पे वही सेम फंडा अप्लाई किया है. Probability of x1 that is 0.20, so same you have to write down for the that is y1 is equal to first y1 आपका है 3, तो उसका probability same होगा. Same you will get the y is equal to 5 for the x is equal to 1, and for the x is equal to 1, what is the probability? 0.30. So it becomes the 0.30 probability of p of y is equal to 5. Now for the 11, 0.25. आप एक लाइन में लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ.
y equal to 21, it is 0.15 and this is 0.10. okay, so आपको लास्ट में आंसर में यही रिप्रेजेंट करना है, बट फॉर द आंसर करेक्ट है कि नहीं, फॉर द वेरिफिकेशन total number of this all sorry summation of the all the probability should be 1. तो वो चेक कर लेना कि वो आंसर 1 हो रहा है कि आप चेक करो, it should be 1. okay, so summation of pi that is equal to 1. so final answer, this is your final answer. clear? now write down the next example. लिखना बाकी है कि हो गया? Yes, ma'am. Done. other students, can I change? Yes, ma'am. SS ले लिया. Okay. Write down the next example. Example number 2. Let x be random variable. Let x be random variable taking values 1, 2, 3 up to n, and let p of x equal to n, that is equal to 1 by 2 raised to n, let y is equal to 1 when x is even and y is equal to -1 when x is odd. Find the PDF, find PDF of y. Let x is the random variable taking values 1, 2, 3 up to n. Let p of x equal to n, that is equal to 1 by 2 raised to n. Let y is equal to 1 when the x is even and y is equal to -1 when x is odd. So find the PDF of y. Now you guys tell me, here the probability for the x variable, it's different for the individual x1, x2 and xn? Yeah, it's same. Ma'am, can you repeat your question? Probability for the variable x1, x2, xn, is the different for individual? Yeah, it's same for all. It will be different. It will be different. How? Ma'am, because p of x is given as 1 by 2 raised to n and n will vary. Okay. So here p of x is equal to n, that is equal to 1 by 2 raised to n. Okay. Yeah, you will get the some different values for that. But यहाँ पे for the x is equal to 1, probability का जो फॉर्मूला है it is the common. यहाँ पे आपको इंडिविजुअल दिया नहीं है. आपको यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, x इज इक्वल टू 0 है, 1 है, 2 है, तो उसका इंडिविजुअल अलग अलग सबके लिए वैल्यूज दिया था 0.15, 0.20, राइट. सम फिक्स वैल्यूज आर गिवन. ओके, यहाँ पे आपको सब कुछ फिक्स वैल्यूज नहीं दिया हुआ है. दिस इज द कॉमन फॉर्मूला 1 by 2 raised to n. एक कॉमन चीज दिया हुआ है आपको यहाँ पे. ओके, आप n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग. तो अकॉर्डिंगली दैट यू विल गेट द सम अदर वैल्यूज, सम डिफरेंट वैल्यूज फॉर दैट. But it is the common probability formula is given, that is p x is equal to n. So will 1 by 2 raised to n is given. Okay, तो यहाँ पे आपको सेम दिया, इट्स नॉट अ डिफरेंट. और यहाँ पे देखो पहले क्या था, y का कुछ फॉर्मूला दिया था 2x + 3 और इसमें x सब्स्टिट्यूट करते थे और आपको y मिलता था. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. y वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1. ओके,
अगर x इवन है तो y 1 मिलेगा, x is odd then y you will get the y is equal to -1. It's already given. What we have to do, we have to find out the probability of y only. तो मैंने x and y डिस्क्रिप्ट टाइप में मैंने बोला कि अगर x का वैल्यू probability of x is given common values, that is the same probability is given over there, then what we have, how we can find out the probability of y, we have to take the addition of that. Clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yeah. So when you have to find out the probability of y is equal to 1, यहाँ पे दो अलग अलग y का वैल्यू, एक 1 है और एक -1 है. So p of y is equal to 1, how we can find out? Y is equal to 1 आपको कब मिल रहा है? When the x is even. Okay. So we can write down the p of x is equal to 2 plus p of x is equal to 4 plus p of x is equal to 6, like that. क्योंकि मुझे इवन नंबर कंसीडर करना है सिर्फ. ओके, लिखा है यहाँ Ma'am, तक? यस. ma'am, इसमें भी like दो केसेस हो सकते हैं ना कि n is even and n is odd. So like last value भी वेरी होगा. लास्ट, हाँ, तो लास्ट वैल्यू आपका क्या आएगा? आप, हाँ, लास्ट वैल्यू आप चेंज, मतलब मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है, दैट मीन डेफिनेटली द लास्ट वैल्यू इज माय इवन नंबर. आई एम ओनली इवन सीरीज ओवर हियर. So ma'am, this in this like we are assuming that n is even. हाँ, तो यहाँ पे n इज इवन ही कंसीडर करना है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी हियर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n. अभी n इज इवन कंसीडर करना है. क्यों करना है? यहाँ पे देखो मैंने y इक्वल टू 1 लिख रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 के लिए x इज इवन आपको दिया हुआ है. x इवन Yes. होगा तो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा ना. द कंडीशन इज गिवन ओवर हियर. और जब p ऑफ y इक्वल टू -1 करेंगे, देन यू हैव टू कंसीडर x इज ऑड ओनली. तो उसके लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 3 1 3, लाइक दैट वी हैव टू कंसीडर. क्लियर? Yeah, ma'am. ओके. सो यहाँ तक लिख लिया सबने? ओके. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. आपको क्या क्या मिलेगा अभी? p ऑफ y इज इक्वल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 2. अभी आपका p ऑफ x इज 1/2, या मैंने n किया 2/n, और यहाँ पे n सिर्फ इवन है. ओके, सो आई कैन रिप्रेजेंट प्लस डॉट डॉट डॉट. सो अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो आई कैन टेक 1/2 आउटसाइड. तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/, अभी यहाँ से मैंने स्क्वायर निकाल दिया है, कॉमन लिया है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर पोर्शन. ये 1/2 क्या हो जाएगा? 4. ओके, so you will get the series like that, 1 plus 1/2 square plus 1/2 4 plus 1/2 6 up to. तो this portion as it is, उसके लिए आप क्या लिख सकते हो? For this series I can write down 1/1 minus 1/2 square. याद है? Yes, ma'am. ओके. सो अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आंसर मिलता है बताओ? One by three. By other students, did you get the answer? 1 by, yeah, it's for the y is equal to 1. Yes, ma'am. Okay, then find for the p of y is equal to -1.
Find the answer for the P of y is equal to -1. Two by three. Yeah, it's 2 by 3. So final answer के लिए make the table like that. Y, there are the two different values and -1. And 1 you have to do addition of these two probability. It should be 1. तो 1 हो रहा है. Total is 1. Okay. हो गया बाकी सबका. 2 by 3 आंसर मिला. नहीं मिला, करना है, कैसे आया आप पूछ सकते हैं या तो फिर मैं आगे जाती हूँ. Everyone done? Okay. Now first type clear. बोथ आर द डिस्क्रीट, तो उसके बेस पे एग्जांपल ऐसे रहेंगे और आपको सॉल्व करना रहेगा. ठीक है, इसमें कुछ डाउट है किसी को? फर्स्ट टाइप कौन? एक्स एंड वाई बोथ आर डिस्क्रीट. Okay, fine. Now write down the next type number 2. Fine. In the type number 2, suppose random variable x is discrete, sorry, x is continuous and the y is discrete. The type of the both random variable are different. X is continuous and y is discrete. Okay. So suppose अभी x is continuous, that mean it is represented in terms of the some range. तो suppose मैं x1 को लेती हूँ, x1 is represented by in the range of suppose -infinity to a. Okay. x2 suppose is represented in terms of the sorry, x less than x2 less than b. Now x3 suppose is represented in the range of b less than x3 less than c, like that. ओके. ये आपका यहाँ पे ऐसे x1, x2 एंड x3 का अलग अलग एरिया, द रेंज इज गिवन. And for that we have to map the x variable, that means particular this area, it is represented in the it is mapped to the only one single variable y1. तो अगर मैं फिगर से रिप्रेजेंट, अगर एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइक दैट, सपोज दिस इज माय एक्सिस -infinity टू इंफिनिटी और -infinity टू ये सपोज एरिया है आपका ए, दिस इज बी, दिस इज सी, लाइक दैट. ओके. तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो पर्टिकुलर मेरा एरिया है x1 एरिया. ओके, मैंने उसको x1 से रिप्रेजेंट किया है. तो दिस एरिया विच वन इज मैप टू द अनदर वेरिएबल y, और ये y यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है y1 से. नाउ दिस एरिया, ये पूरा एरिया, इट इज रिप्रेजेंट, सॉरी
it is represented by y2. Now this area, this whole area, it is represented by, it is mapped into the y3. So it is like that. तो यहाँ पे क्या हुआ, x आपका कंटिन्यूअस है, दैट मीन पर्टिकुलर रेंज है x का कुछ, और वो y पे जब मैप हो रहा है तो वो डिस्क्रीट वैल्यू में मैप हो रहा है. दैट मीन अगर उसका प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट मीन सपोज पीडीएफ ऑफ x, तो पीडीएफ ऑफ x कैसे रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इंफिनिटी टू a f of x dx. Okay, sorry, this is not pdf of y, this is pdf of y. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ, you can see मुझे p of y1 कब मिलेगा, जब x का रेंज माइनस इंफिनिटी टू a का मैं इंटीग्रेशन करूंगी तब. ये whole range of the x I am getting the value of y1 only. तो ये मेरा y1 कुछ एक ही वैल्यू मिलेगा. ओके, दैट इज द डिस्क्रीट फॉर्म. बट आप यहाँ पे x का क्या पर्टिकुलर रेंज ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ x1 कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से आपको डायरेक्ट y1 नहीं मिलता है, जो हमने फर्स्ट टाइप 1 में सीखा, राइट. कुछ एक फॉर्मूला दिया था y इज इक्वल टू सपोज 2x, तो अगर x 0 रखती थी तो मुझे y 0 मिल जाता था, x 1 रखती थी तो मुझे y 2 मिल जाता था, लाइक दैट. तो x का अगर इंडिविजुअल वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करती थी मुझे y का मिलता, दैट में मेरा x भी डिस्क्रीट था, मुझे y डिस्क्रीट मिलता था. बट यहाँ पे क्या है, x का कुछ रेंज है आपके पास, और वो रेंज से आपको y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन y डिस्क्रीट मिल रहा है और x कंटिन्यूअस है. तो सिमिलर p ऑफ y इज इक्वल टू y2 कैसे मिलेगा, द रेंज ऑफ a to b f of x dx, लाइक अप टू p of y इज इक्वल टू yn के लिए आपको आप फाइंड कर सकते हो. So this is the PDF of y, how we can find out when the x is continuous and y is discrete. Clear? Yes, ma'am. Okay. So write down the example based on this type 2. A random variable x is exponentially distributed. Random variable x is exponentially distributed with mean 0.2 and with mean 0.2 and is transformed to y and is transformed to y such that when x is less than 1 comma y is equal to 0, when 1 less than x less than 4, when the y is equal to 3, when 4 is less than equal to x, when y is equal to 6. Find PDF of y. Find PDF of y. Also find mean and variance of y. Also find mean and variance of y. Have you written properly? Yeah, should I repeat it? Again, I am going to repeat the whole question. A random variable x is exponentially distributed with mean 0.2 and is transformed to y such that when x is less than 1, y is equal to 0. When 1 less than x less than 4,
y is equal to 3. When 4 less than equal to x, y is equal to 6. Find the probability distribution function of y, that is PDF of y, and also find the mean and variance of y. Okay, now मैं नया ही लेती हूँ, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें. ओके, यहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल x का पर्टिकुलर टाइप दिया हुआ है कि वो कौन सा रैंडम वेरिएबल है. इट इज गिवन, इट इज द एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी हमने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन सीखे थे, लाइक एज अ बायनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दैट. एक्सपोनेंशियल नहीं सीखा था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था. बट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है. Write down the PDF for the exponential distribution, that is f of x. It is equal to lambda into e raised to minus lambda x. ये पहले ओल्ड सिलेबस में था एक्सपोनेंशियल, अभी नहीं था तो मैंने इसीलिए आपको नहीं कराया था. ठीक है, तो इतना याद रखना, अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तो उसका पीडीएफ है f of x, that is equal to lambda into e raised to minus lambda x. ओके, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको उसका मीन आपका है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. सॉरी, मीन इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ओके, तो यहाँ पे इज गिवन. ओके, मीन इज गिवन दैट इज 0.2. पहले अपने को f of x फाइंड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मुझे जो अलग अलग योर क्वेश्चन मीन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 के लिए वैल्यूज जो फाइंड करनी है उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन लगेगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, f of x है. तो f of x क्या है वो ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो वो क्या बोला है कि इट इज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड. तो मुझे ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा f of x की जगह पे. बट इन दिस फॉर्मूला लैम्डा इज द कांस्टेंट, राइट. तो उसको कांस्टेंट नहीं रखना है क्योंकि उसके लिए उसका मीन वैल्यू दिया हुआ है. तो मीन क्या है, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा. तो यहाँ पे मीन इज गिवन 0.2. तो वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ लैम्डा हियर. तो आपको आंसर क्या मिलेगा लैम्डा का, इज 5. ओके, तो अभी आपको प्रॉपर f ऑफ x मिल गया, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ई रेज टू माइनस 5x. और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज ऑलवेज फॉर द x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, ये जो है it is always x is greater than equal to 0. So you can write down here, this is for the x is greater than equal to 0. अभी इस बार एक्सपोनेंशियल सिलेबस में क्यों नहीं था वो मुझे भी डाउट था, तो मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए नहीं समझाया आपको, क्योंकि इन द सम एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली पीडीएफ दिया हुआ नहीं रहेगा, ऐसे पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ रहेगा. सपोज समटाइम्स दे मे बी आस्क x is distributed like with the normal distribution. Okay, the random variable x is normal distributed over the particular range. तो उस टाइम पे आपको पीडीएफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का याद होना जरूरी है. उसका मीन क्या है, उसका वेरिएंस क्या है. हमने जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सीखे हैं वो सबका पीडीएफ, मीन एंड वेरिएंस, ये 3 चीज याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल में डायरेक्टली आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे पीडीएफ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा. तो उसका पीडीएफ, वो डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पता है तो ही आप एग्जाम्पल सॉल्व करना स्टार्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे का तो सिंपल है, इंटीग्रेशन ही करना है. आपको कंसेप्ट पता होगा कि उसमें करना क्या है, बट अगर फर्स्ट स्टेप नहीं पता है तो कुछ मतलब नहीं है. एक पेज पे सबसे ज्यादा f of x. Now what we have to find out first, probability of y is equal to 0. तो y इक्वल टू 0 के लिए आपको x का क्या लिमिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, x लेस देन 1. ओके, आपको x लेस देन 1, तो वी कैन राइट डाउन लाइक दैट
suppose p of y is equal to 0, that is equal to p of x less than 1. Okay, x less than 1 के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगा वो y इक्वल टू 0 के लिए हो जाएगा. तो उसके लिए x less than 1, that means what is the limit for the 0 to integration? 1. It's 0 to 1, correct? It is 0 to 1, 5 into e raised to minus 5x dx. तो अभी आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट इज फॉर द p ऑफ y इक्वल टू 0 का आंसर है. स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है बाउंस? Yes, ma'am, समझ रहा. ओके, सिंपल है. जब सब मिक्स होगा ना तब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो प्रैक्टिस रखना और बेसिक उसका प्रॉपर लिमिट का कोई इश्यू नहीं होगा कभी भी आपको कि क्या लिमिट लेना है इंटीग्रेशन का, ताकि इंटीग्रेशन सिंपल रहेगा. इतना बड़ा बड़ा कुछ इंटीग्रेशन नहीं आएगा. मैथमेटिक्स में आपने जो किया था वैसा नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा. We should concentrate on a limit, how we can select the limit for the integration, and what we have to exactly find out, वो पता होना चाहिए. क्या आंसर मिला बताओ? 1 minus e raised to minus 5. सॉरी, क्या बोला प्रियंका? आवाज नहीं आया क्लियरली. 1 minus e raised to minus 5. या इट्स 1 माइनस ई रेज टू, उसका पॉसिबल है तो नंबर में आंसर लिख दो. क्यों लिखने के लिए बोल रही हूँ कि जब y का टेबल बनाएंगे लास्ट में तो हमको एडिशन करके 1 आना चाहिए. वो वेरिफिकेशन के लिए आपको इजी रहेगा कि करेक्ट है कि नहीं. अदरवाइज ये आंसर भी चलेगा, ऐसा इश्यू नहीं है. पॉइंट में क्या किसी ने फाइंड किया तो बता देना आंसर मुझे. 0.9933. 0.9993. नहीं, ऐसा है? 9933. Okay, 99, fine. Now for the next point, y we can find it out. For that x is given. What is the limit for the x? 1 less than 1 to 4. Now take the limit for the 1 to 4 and find out the answer. 1 to 4.
क्या मिला? 0.00673. या इस 0.0067, तो उसका आंसर है 0.0067. नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, p of y is equal to 6. So for that, what is the x? 4 less than equal to x. क्या लिमिट आएगा? 4 to infinity. Yeah, it's 4 to infinity. We can say x is greater than equal to 4. So 4 to infinity. जीरो पॉइंट जीरो वन एट थ्री नहीं, मैम बहुत छोटा नंबर आ रहा है. it's almost 0.0. It's, we can say it's 0. हाँ, it is 2 into 10 to the power minus 9. Yeah, so it is like a 0.000 कुछ मिल रहा है, तो it's 0. So PDF of y is, लास्ट में ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि वही आपका आंसर बता रहा है. वो इंडिविजुअल किया है, बट एग्जैक्टली आपको यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना है. सो y इक्वल टू क्या था? फर्स्ट 0 के लिए, देन 3 के लिए, देन 6. सो p ऑफ y इज इक्वल टू वाई आई, दैट इज 0 के लिए क्या मिला? 0.9933. सेकंड मिला था 0.0067 ना, हाँ. और ये मिला आपको 0.000. तभी इसका एडिशन करके अगर चेक करेंगे तो विल गेट द टोटल इज 1. तो ये हो गया PDF ऑफ y. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑल्सो. फाइंड करो मीन. मीन किसका करना है? मीन ऑफ y करना है, नॉट मीन ऑफ x. मीन एंड वेरिएंस ऑफ y. कौन सा फॉर्मूला आएगा? summation y into p of y. यस, क्योंकि y यहाँ पे डिस्क्रीट है आपको टेबल में, ठीक है. तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स वाई आई, e of y that is equal to summation of pi into yi. So 0 multiply this, 3 multiply this, and 6 multiply this. क्या आ रहा है आंसर बताओ? जीरो पॉइंट जीरो वन एट थ्री. लेट मी चेक. नो, इट्स 0.0201 आ रहा है मेरा. बाकी लोग चेक करो. Yes, ma'am. या इज 0.0201. Okay. Now variance. For the variance, first you have to find out e of y square. That is summation of pi into yi square.
0.0599 मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है, मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ है, आप बाकी के साथ वेरीफाई करो। 0.0599 मिला एफ वाई स्क्वायर। Yes, ma'am. Okay, then find out the variance. Ma'am, actually, variance V of X, Y 0.0599. Okay, variance आया वो आपका टोटल। Yes, Okay. ma'am. Directly last answer calculate किया. Okay, fine. The variance is variance of y that is equal to 0.0599. Okay, वेरीफाई कर लो बाकी लोगों को मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ है। डन होगा सबका? ऐसा लगा आज के लेक्चर में 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, रोल नंबर 1, 18, 10 और 25। पता नहीं बाकी सब लोग क्या कर रहे हो। खूब जल्दी से आपका कॉलेज फिजिकली स्टार्ट हो जाए। मैम हमें तो लगता है हम सिर्फ फाइनल ईयर में दर्शन देने आएंगे। नहीं, प्लीज ऐसा प्रे मत करो। आप लोग फिजिकली जल्दी से जल्दी आए, हम ऐसा चाहते हैं। अभी बोर हो गए। अभी ऐसे आप बोले ना, वन वे कम्युनिकेशन समझ में नहीं आता, स्टूडेंट्स हैं नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता हम लोगों को। वेरिएंट्स आते रहेंगे। आप सबने वैक्सीन ले लिया ना? नो मैम, सेकंड डोज बाकी है। तो हो जाएगा ना अभी, ये सितंबर मंथ में तो ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा। मैम अभी लिया मैंने, अभी फर्स्ट डोज लिया। अभी फर्स्ट डोज है, अभी तो बहाने मारेंगे ना, कॉलेज नहीं आना है बस आप लोगों को, और कुछ नहीं। नहीं मैम, नहीं मिल रहा था हम लोग को। ओके, आई नो। मुंबई में सिचुएशन मतलब बहुत डिफिकल्ट मिलना। स्लॉट ही खाली नहीं मिलता मैम। और मैम अभी सब सीनियर सिटीजन का सेकंड डोज चालू, तो हम लोग को मिल रहा भी नहीं है कोई जगह। सही बोला मैम। आप लोगों में से काफी लोग तो गांव में होंगे, और वहीं पे तो इजीली मिल जाता है, सिर्फ मुंबई में प्रॉब्लम है। वही तो मुंबई में बोल मिल रहे जाता है, गांव में नहीं मिलता। हैं, गाँव में अवेलेबल ही नहीं है मैम, स्टॉक में ही नहीं है। मैम कॉलेज वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों नहीं अरेंज करता जैसे ऑफिसेस में, प्राइवेट अब इतना एंटरप्राइजेस? खर्चा तो पता नहीं, हो तो कॉलेज का डिसीजन है, इतना खर्चा उठाएगा कि नहीं। फैकल्टी के लिए नहीं किया, फिर स्टूडेंट्स तो बहुत दूर की बात है डियर। कॉलेज कंजूस है। बट मैम कॉलेज की नो पहुंच तो कमेंट्स। बहुत ऊपर तक है। अरे वो तो सब है, अभी वो मुझे नहीं पता। आप लोग आपकी तरफ से ले लो, आपके पेरेंट्स हो गए आईटी में, तो वहीं पे ड्राइव चलता रहता है, मोस्टली एमएनसी कंपनीज या आईटी कंपनीज ने तो अरेंज किया है, तो वहीं पे हो जाएगा। मैम अगर सेकंड डोज के बाद ही शुरू होगा? क्योंकि अलाउड नहीं है ना ट्रेन में, लोकल्स में 2 डोज होना कंपलसरी, तभी आपको पास मिलेगा या ट्रैवलिंग अलाउड होगा ना। हाँ मैम, वो वाला तो रूल है। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, आप तो वही मैम और चाहते हो। फर्स्ट डोज लेने के बाद आफ्टर 84 डेज वाला हिसाब हो गया मैम। अब अभी 84 डेज सेकंड डोज मिलेगा। पहले भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बोल रहे हैं मैम, ऐसा है, अब क्या बोले। ऐसे आफ्टर 84 डेज के बाद ही एक्चुअली लेना चाहिए, तो भी ज़्यादा इफेक्टिव है। बट मतलब अगर अवेलेबल रहता है ना, तो वो पहले भी दे देते हैं। वो तो नहीं देते। क्या? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कितने लोग बोल रहे हैं कि थर्ड डोज भी लेना पड़ेगा। नहीं, थर्ड नहीं लेना हाँ, वो पड़ेगा। बूस्टर डोज है ना वो। हाँ, थर्ड मतलब ऐसा है कि एवरी ईयर वी हैव टू टेक,
इसका मतलब अगर ये चला 2-3 साल, जब वो तक तो मैम तो वैलिडिटी है मैम, मैं 6 महीने की वैलिडिटी है मैम एक वैक्सीन वैक्सीन ले की। लेके ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। कोविड नहीं मारेगा, मैम वैक्सीन हमको मार देगा। इंजीनियरिंग के साथ साथ वैक्सीन बनाना भी सिखा देते तो प्रॉफिट हो जाता था ना। अरे तो फिर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहिए था ना। नहीं, अभी वो सब एकदम हॉट केक की तरह बिक रहा है तो। मैम लीव कर दे, टाइम हो गया वैसे। थैंक यू मैम, बाय। Thank you, miss.